Good morning, students. Today we are going to start with your experiment, and the experiment which we are going to perform today is to make a temporary mount, that is a temporary slide of an onion peel and cheek cells, that is the epithelial cells of the cheek lining. So the material which you require for this experiment, first of all you require 2 watch glasses. So you can see bache, these are the watch glasses. You require 2 slides, these are the slides, glass slides, cover slips. You have this box over here, small box, it contains the cover slips. You'll require a forceps, 1 needle, and you'll require the stain. You have 2 stains bache, the safranin stain and the methylene blue stain. You can use any one of them. And you need some amount of glycerin. The small bottle contains glycerin. Here you can see that in this petri dish, this is a petri dish which contains water, and I have put a small piece of onion inside water so that it does not get desiccated, dry ना हो जाए, इसीलिए इसको मैंने पानी में डाल के रखा हुआ है. So let's see how we are going to make a temporary slide. So to make a temporary slide, first of all you need a very thin peel of onion, and you need to stain it. उसको stain करना है, उसमें कलर ऐड करना है. तो सबसे पहले आप पेट्री डिश से जो वाटर है, so first of all you will transfer some amount of water using a dropper inside the watch glass. From the petri dish you will transfer some water inside the watch glass. We'll put water in both the watch glasses because we are going to make 2 slides simultaneously. See students, you always need to add some water. वाटर इसलिए डालना होता है ताकि सेल्स जो हैं वो ड्राई अप ना हो जाए. ड्राई अप हो गए तो आपकी स्लाइड प्रॉपर नहीं बनेगी. नाउ विल टेक अ फोर्सेप. ये फोर्सेप लेंगे एंड ये जो अनियन पील है इसमें से एक पतली सी लेयर निकालेंगे पील की. ऑलराइट, सो एक थिन लेयर को हम यहाँ से पील ऑफ करने की कोशिश करेंगे. You can use a needle also. एक पतली सी लेयर निकालने के लिए you have to use a needle also. So using a needle, you will take out a very thin layer. बहुत पतली सी एक लेयर निकालनी है बच्चों आपको. See. Like this. You can see it here, and then you will transfer it inside the water. Again you can see I have taken out some thin peels from the onion piece and I am transferring them inside the water so that they don't dry up. देखिए. नाउ बच्चे वी आर गोइंग टू स्टेन इट. आपके पास 2 स्टेन्स हैं. एक है सैफरानिन जो कि रेड या ऑरेंज कलर देगी, एंड देन वी हैव मिथाइलिन ब्लू जो कि ब्लू कलर देगी. सो आई एम गोइंग टू ऐड सैफरानिन स्टेन इन द अनियन पील. जो अनियन पील वाला है इसमें हम थोड़ा सा सैफरानिन स्टेन डालेंगे. सो वील ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स. दैट इज ऑल. बहुत ज़्यादा स्टेन भी यूज़ नहीं करना है वरना आपको माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा. सो यू हैव टू यूज़ अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ स्टेन, बस इतनी कि आपके पास कलर आ जाए प्रॉपर, जो आपका मटेरियल है वो प्रॉपरली स्टेन अप हो जाए. एंड देन यूजिंग दिस नीडल यू विल मिक्स दिस स्टेन प्रॉपरली. इसको प्रॉपरली मिक्सअप कर लेंगे आप. सिमिलरली बच्चे, जो हमने माउथ के सेल्स लेने उसके लिए हम एक टूथपिक यूज़ करेंगे. एक फ्रेश टूथपिक लेंगे आप, और सपोज करो ये आपकी चीक है तो इसमें आप अंदर उसको स्क्रैपल करेंगे, ऐसे रब करेंगे ताकि इसके ऊपर थोड़े से सेल्स आ जाए और उनको आप इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे.
So here I am transferring the cells over here from my mouth. And now we are going to add some methylene blue stain. That is all. 2 to 3 drops are more than enough. Now students, after waiting for approximately 5 to 10 minutes, so that ये जो आपके अनियन पील सेल्स हैं और जो हमारे चीक सेल्स हैं ये स्टेन को प्रॉपरली अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लें, अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लें, प्रॉपरली स्टेन अप हो जाए, उसके बाद हम अपना स्लाइड बनाएंगे. सो अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 मिनट्स वी आर गोइंग टू वेट. नाउ लेट्स मेक दी स्लाइड. स्लाइड बनाने के लिए आपको सबसे पहले बच्चे, दिस इज़ कॉल्ड दी माइक्रो स्लाइड. ये ग्लास स्लाइड लेनी पड़ेंगी. हम 2 स्लाइड्स बना रहे हैं. यू विल नीड दी कवर स्लिप्स. ये देखिए बच्चे, यहाँ पे ये जो स्मॉल बॉक्स में छोटे छोटे ग्लास के पीसेस है, दीज आर कॉल्ड कवर स्लिप्स. ग्लिसरीन चाहिए होगी, इस बॉटल में ग्लिसरीन है. नाउ सबसे पहले आप अपनी एक पील लेंगे. इस नीडल से बहुत सॉफ्ट हैंड से उसको पिकअप करेंगे. आपको पील को डिस्ट्रॉय नहीं करना है. यू विल टेक द पील एंड यू विल पुट इट इनसाइड. सेंटर ऑफ द स्लाइड पे प्लेस करेंगे, बिल्कुल सेंटर पे. You can use your forceps. एंड इसको फोल्ड नहीं होने देना है, तो इसको हम ओपन अप करेंगे. फोल्डेड पील नहीं डालना है इसके अंदर. सो यू कैन सी लाइक दिस. और इस चीक सेल्स को अगेन हम एकदम सेंटर में प्लेस कर देंगे. नाउ विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर बच्चों, एक ड्रॉपर लेंगे और ग्लिसरीन की 1 ड्रॉप इनके ऊपर प्लेस करेंगे. हमने मेक श्योर करना है बच्चे कि बबल्स ना आए. ठीक है, आप कोशिश करिए कि जो आप ग्लिसरीन यूज़ करें उसमें बबल्स कम से कम हो. सो 1 ड्रॉप ऑन दिस एंड 1 to 2 ड्रॉप्स ऑन दिस. बिकॉज ये थोड़ा सा लॉन्ग है, इस पर हम 2 ड्रॉप्स डाल देंगे. नाउ वेरी केयरफुली यू विल टेक अ कवर स्लिप. एक कवर स्लिप लेंगे इस बॉक्स में से. नाउ स्टूडेंट्स केयरफुली सी, आपको कवर स्लिप कैसे प्लेस करनी है. कवर स्लिप प्लेस करने के लिए आप अपनी नीडल को 45 डिग्रीज़ के एंगल पे रखेंगे. कवर स्लिप को उसके ऊपर प्लेस करेंगे और जैसे ही नीडल को पीछे पुश करेंगे, देखिए नीडल को आप ऐसे बैक पुश करेंगे इस तरह से. जैसे ही बैक पुश करेंगे आप कवर स्लिप को छोड़ देंगे, वो खुद ब खुद इसके ऊपर प्लेस हो जाएगी. सो 1 2 3 एंड हियर वी गो. सी, this is how you are supposed to place your cover slip. अनियन पील के लिए भी सेम करेंगे. कवर स्लिप को पकड़ेंगे, 45 डिग्रीज़ के अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्रीज़ के एंगल पे हम अपनी नीडल को प्लेस करेंगे. कवर स्लिप को उसकी सपोर्ट पे देंगे और फिर ऑन दी काउंट ऑफ 3 हम इसको छोड़ देंगे. 1 2 3 एंड हियर वी गो. सो देखिए आपके पास 2 टेम्पररी स्लाइड्स बन गई बच्चे. इनको हम टेम्पररी माउंट कहते हैं. टेम्पररी माउंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इनको वापस रिमूव करके इन स्लाइड्स को रीयूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर स्लाइड्स. और फिर हम इन स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व. सी स्टूडेंट्स, सी दिस इज़ द माइक्रोस्कोप. इट इज़ कॉल्ड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. दिस इज़ द स्टेज. आप इस एडजस्टमेंट को यूज़ करके इसमें स्लाइड प्लेस करते हैं और
इसको हम जहाँ पे बच्चे हम आइज़ को प्लेस करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड द आई पीस। इनको हम आई पीस बोलते हैं। जो नीचे वाले लेंसेज हैं ये जो एडजस्टेबल होते हैं बच्चे, इनको हम ऑब्जेक्टिव लेंसेज बोलते हैं। So this is the compound microscope which you will use to observe your slides. आप अपनी स्लाइड्स को यहाँ स्टेज के ऊपर प्लेस करेंगे। उसके बाद ये है मेजर एडजस्टमेंट बच्चों। देखिए, जब हम इसको मेजर एडजस्टमेंट को घुमाते हैं तो आपको स्टेज ऊपर नीचे जाती दिख रही है, क्योंकि एक विजिबल चेंज आता है हाइट ऑफ द स्टेज के अंदर, इसलिए इसको मेजर एडजस्टमेंट बोलते हैं। दिस इज़ द माइनर एडजस्टमेंट बच्चे, इसको माइनर एडजस्टमेंट बोला जाता है। तो जब हम इसको मूव करते हैं तो एक्चुअली स्टेज बहुत ही कम डिस्टेंस से मूव करता है, जो हमें दिखता भी नहीं है, इसीलिए इसको माइनर एडजस्टमेंट बोलते हैं। सो दी माइनर एडजस्टमेंट, मेजर एडजस्टमेंट, स्टेज, ऑब्जेक्टिव लेंसेज, और जहाँ पे आप अपनी आइज़ को प्लेस करेंगे, दीज आर दी आई पीस। ऑल राइट, एंड दिस इज़ द सोर्स ऑफ लाइट। कुछ माइक्रोस्कोप्स में बच्चे यहाँ पे एक मिरर होता है, तो उस माइक्रोस्कोप को आपको विंडो के पास लेके जाके लाइट को फोकस करवाना पड़ता है। सो दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट द माइक्रोस्कोप, और इसको यूज़ करके हम अपनी स्लाइड्स देखते हैं। स्लाइड्स के अंदर जो सेल्स हैं उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर अनियन पील स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप। यू कैन सी बच्चे, यहाँ पे आपको छोटे छोटे रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये प्लांट सेल हैं, अनियन पील सेल्स या प्लांट सेल्स। और इनमें हर सेल के अंदर बच्चे आप एक साइड पे एक छोटा छोटा डॉट देख रहे होंगे, दोज आर दी न्यूक्लियस बच्चे। प्लांट सेल में न्यूक्लियस एक साइड पे होता है क्योंकि सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल होता है जो माइक्रोस्कोप में इजीली देखना मुश्किल है। हाउएवर न्यूक्लियस और सेल वॉल आप देख पा रहे हैं। प्लांट सेल्स जो होते हैं वो एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स की फॉर्म में होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे उनकी डेफिनेट शेप है, स्ट्रक्चर है, रेक्टेंगुलर शेप के हैं ऑलमोस्ट। और इन सभी सेल्स के साइड पे हमें डार्क डॉट्स दिख रहे हैं जिनको हम न्यूक्लियस कहते हैं। सो यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर, हर सेल के साइड पे डार्क कलर के डॉट्स हैं एक साइड पे, जिनको आप न्यूक्लियस कहते हैं। सो देखिए स्टूडेंट, मैंने इसको और ज़्यादा मैग्नीफाई करके दिखाया है आपको, और ज़्यादा मैग्नीफाइड व्यू है ये। सो इसमें आप देख सकते हैं हर सेल के अंदर एक छोटा सा डॉट दिख रहा होगा आपको, वो डॉट्स बच्चे न्यूक्लियस हैं। वो सारे डॉट्स हर सेल के अंदर जो साइड पे एक डॉट प्रेजेंट है, दैट इज़ द न्यूक्लियस। सो दिस इज़ व्हाट यू विल ऑब्जर्व व्हेन यू पुट अ अनियन पील स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप। सो स्टूडेंट्स, in contrary to the onion peel cells, in this microscopic view of the cheek cells you can see the cells are not regularly shaped. ये रेक्टेंगुलर शेप नहीं है, सर्कुलर शेप है, ओवल शेप के सेल्स हैं। और इन सेल्स के बिल्कुल सेंटर में, ना कि साइड्स पे बल्कि बिल्कुल सेंटर में डार्क कलर्ड बॉडीज़ हैं जो कि डार्क ब्लू हो चुकी हैं। दोज आर दी न्यूक्लियस, एनिमल सेल के न्यूक्लियस हैं। सो इनमें बच्चे आपको क्लियरली कोई सेल वॉल नहीं दिख रही क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसलिए इनकी जो बाउंड्री है वो बहुत ज़्यादा वेल डिमार्केटेड यानी कि क्लियर बाउंड्री नहीं है। फर्दर इसका और मैग्नीफाइड व्यू आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। सो इसमें आप देख सकते हैं जो सेल्स हैं एनिमल सेल्स, उनके बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जबकि प्लांट सेल के अंदर हमने देखा अनियन पील सेल्स में एक साइड में न्यूक्लियस प्रेजेंट था, सेंटर में नहीं था। ये जो सेल्स हैं सर्कुलर या इर्रेगुलर शेप के हैं, जबकि प्लांट सेल्स जो थे वो रेक्टेंगुलर शेप के थे। उनके अंदर सेल वॉल प्रॉपरली दिख रही थी, लेकिन चीक सेल जो कि एनिमल सेल है, इसके अंदर सेल वॉल प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं है, दिख भी नहीं रही क्योंकि एब्सेंट होती है इनके अंदर सेल वॉल। सो दिस इज व्हाट यू विल सी अंडर अ माइक्रोस्कोप in case of a cheek cell. So students, this is how you are going to make your slides, and then after making the slides you are going to observe them under the microscope and differentiate between how the plant cells look like and how the animal cells look like. You have to keep certain things in mind. Those are the precautions, that while dealing with the needle and while collecting your cheek cells, be very careful. Don't prick yourself with the toothpick.
then you have to submit all the apparatus back to the lab coordinator after completing the experiment. Make sure there are very few bubbles in your slides. अगर बहुत सारे bubbles हैं slide में तो आपकी slide reject कर दी जाएगी. Also you have to make sure that you take very thin peels. जितना थिन होगा आपका पील और चीक सेल्स का जो लेयर है वो जितना थिन होगा उतना क्लियर व्यू मिलेगा आपको माइक्रोस्कोप के अंदर. अदरवाइज आपको सेल्स दिखेंगे नहीं और आप उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे. रेस्ट ऑफ द प्रिकॉशंस आर गिवन इन योर बुक ऑल्सो. इन योर प्रैक्टिकल फाइल द प्रिकॉशंस आर मैंशनड. Another thing, this is the first experiment. You are going to write it as the first experiment in your lab manuals. Not the 6th, but the first experiment of your science practical lab manual. So you'll write it as experiment number 1. आपकी मैनुअल में ये एक्सपेरिमेंट नंबर 6 करके मेंशन है, लेकिन आप इसको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 करके लिखेंगे. ऑल राइट. सो थैंक यू एवरीवन.